back, student. So today we'll start our new chapter number 14, loop control structures, and we are in the session number 1. So our first topic is introduction. In a C program, there may be a situation where we want to execute some block of statement many times. All program languages offers loop control structure, also known as looping, allowing program to execute a statement of group of statement multiple times. उसका मीनिंग ये है कि आप जब भी सी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो तो ऐसा कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, उसको आपको मल्टीपल टाइम वही स्टेटमेंट या फिर वही ब्लॉक को यूज़ करना हो, देन यू वांट टू यूज़ अ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट. तो जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी ब्लॉक होगा, वो आप मल्टीपल टाइम वो स्टेटमेंट या फिर वो ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, उसका यूज़ कर पाओगे. क्लियर. In this chapter, we will discussing the loop control structure provided by the C programming language. Here, control structure means that the flow of execution may not be sequential and control may be transferred to any statement based on given condition in our program. Loop control structure का meaning क्या है? First of all, loop control structure का meaning means आप का जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो वो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में नहीं होगा, वो आप जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी कंडीशन लिखोगे उस हिसाब से आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो फ्लो एग्जीक्यूट होगा. क्लियर. इन लूपिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर ऑल्सो एग्जीक्यूट until some exit control is satisfies. The loop control structure is compared to two parts. First one is body of a loop and second is the control statement. Next is, depending on the place of control statement in loop, it can be classified as entry control loop and exit control loop. That means यहाँ पे जितने भी लूप होगी वो दोनों लूप जितनी भी लूप होगी वो सारी लूप दो कॉन्सेप्ट पे वर्क करती होगी. फर्स्ट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकंड इज एग्जिट कंट्रोल लूप, राइट. अभी हमें ये पता होना चाहिए कि एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन सी है और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन कौन सी. क्लियर. इन एंट्री कंट्रोल loop the exit control condition is checked before exit of the statement inside loop body. It means that in case of exit control loop, body will be executed at least one before existing from the loop. Further discussion related to the sum is given during explanation of different types of loop. Now let's discuss syntax and general rules related to following three basic loop control structure provided by a C language. First is for loop, second is while loop, and third is do while loop. So first is for loop. The for loop normally used when we want to execute block of statement fixed number of time. To make for loop more dynamic, we can use the exit condition inside of loop. In next slide, try to understand the use of simple for loop statement by example. See the syntax over here. फोर ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3. देन ब्रैकेट के अंदर आपके जो भी स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट ब्लॉक होंगे वो, राइट. तो आपको फॉर लूप यूज करने के लिए कंडीशन याद रखनी पड़ेगी. फर्स्ट इज फॉर, देन एक्सप्रेशन, राइट. एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, राइट. ये सारे ऑप्शनल एक्सप्रेशन है, आप अपने हिसाब से जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से आप एक्सप्रेशन लिख पाओगे, राइट. एंड देन उसके रिगार्डिंग आपके जो भी स्टेटमेंट होंगे, जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक होंगे वो बीच में आ जाएंगे. क्लियर. द हेडर ऑफ फॉर लूप कंटेन 3 एक्सप्रेशन separated by semicolon in a parenthesis. All those expression are optional. से यहाँ पे लिखा है all those expression are optional. That means आप जो भी कंडीशन यूज करोगे उस हिसाब से आप जो भी लॉजिक यूज करोगे उस हिसाब से आप उसके रिगार्डिंग एक्सप्रेशन लिखोगे. क्लियर. स्टेटमेंट ब्लॉक which is also known as body of for loop may contain simple statement or compound statement. नेक्स्ट इज ओके, सी द सिंपल प्रोग्राम ओवर हियर. यहाँ पे हमें लूप का यूज़ करना है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप क्यों यूज़ होता है वो उन लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि फॉर लूप जनरली यूज व्हेन वी वांट टू एग्जिट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम. दैट मीन्स जो भी लूप आप यूज़ करोगे, राइट, तो वो लूप
वो लूप कितने टाइम तक वो लूप प्रोग्राम के अंदर यूज होगी, राइट, तो वो फिक्स्ड होगा, राइट। तो उसके लिए हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। सी यहाँ पे लिखा है नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम। जो भी हमारा एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी, जो भी हमारे स्टेटमेंट होगी, जो भी हमारे जो भी हमारे एक्सप्रेशन होंगे, राइट, एक्सप्रेशन और जो भी हमारे स्टेटमेंट होंगे वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? सी द प्रोग्राम ओवर हियर, यहाँ पे हमें स्टार प्रिंट करना है, पर कितनी बार स्टार प्रिंट करना है? 5 टाइम हमें स्टार प्रिंट करना है, वो हमें पता है, राइट। 5 टाइम मुझे स्टार प्रिंट करना है हमारे स्काइड एडिटर के अंदर, राइट। नाउ मैं प्रोग्राम कैसे लिखूँ? तो स्टार प्रिंट करना है, दैट मीन्स मुझे एक ही आउटपुट को मुझे बार बार प्रिंट करना है, राइट। मैनी टाइम एक ही कंडीशन को मुझे बारी बारी से रिपीट करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? तो फॉर लूप में 5 टाइम्स फॉर लूप को मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा तो स्टार प्रिंट हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे उन लोगों ने फॉर लूप में लिखा है, फर्स्ट लाइन वही लिखा है कि एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम, राइट। आपके जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम वो प्रोग्राम में यूज हो गए, राइट। तो उस हिसाब से आपको फॉर लूप लिखना पड़ेगा। क्लियर? सो यहाँ पे मुझे 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करना है, तो मैं प्रोग्राम कैसे लिखूंगा? फर्स्ट इज सिंपल हेडर फाइल है, उसके अंदर उसके बाद मेन फंक्शन, राइट। देन ब्रैकेट के अंदर इंटीजर काउंट नाम का एक वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज किया है, फॉर ब्रैकेट के अंदर काउंट इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स ये हमारा एक्सप्रेशन 1। देन सेकेंड इज काउंट लेस और 5, क्लियर, काउंट लेस और 5, सेमीकोलन काउंट प्लस प्लस। अभी प्लस प्लस का मीनिंग आपको पता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट। प्री इंक्रीमेंट भी होता है, प्री डिक्रीमेंट भी होता है, वो भी आपको पता है, राइट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज किया है, यहाँ पे प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट है, राइट। अभी फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? काउंट इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स काउंट में फर्स्ट 0 वैल्यू है। क्लियर? यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में क्या होगा? 0 लेस और 5, राइट, ट्रू। तो क्या करेगा? यहाँ पे फर्स्ट स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन काउंट प्लस प्लस मीन 0 वैल्यू है, तो 0 में एक इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स 1, राइट। अभी काउंट की वैल्यू कितनी है? 1, राइट। 1 इक्वल टू 0, ट्रू। तो कंडीशन सेकेंड एक्सप्रेशन में जाएगा 1 लेस और 5, ट्रू। क्लियर? तो सेकेंड स्टार प्रिंट कर देगा। क्लियर? देन इंक्रीमेंट 1 प्लस प्लस दैट मीन्स 2, अभी काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 2। क्लियर? देन 2 इक्वल टू 0, 2 लेस और 5, ट्रू। तो थर्ड स्टार प्रिंट कर देगा। क्लियर? देन काउंट प्लस प्लस मीन्स 3 प्लस प्लस। क्लियर? अभी 3 में प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। अभी काउंट की वैल्यू क्या है? 4। क्लियर? 4 इक्वल टू 0, यस। 4 लेस और 5, क्लियर। तो अभी वो क्या करेगा? स्टार प्रिंट कर देगा। क्लियर? अभी 5 आ गया, 4 प्लस प्लस मीन्स अभी काउंट की वैल्यू क्या हो गई है? 5। क्लियर? 5 इक्वल टू 0, ट्रू। कंडीशन के अंदर जाएगा 5 लेस और 5, ट्रू। स्टार प्रिंट कर देगा। क्लियर? अभी 5 प्लस प्लस, 5 प्लस प्लस होगा तो इंक्रीमेंट में क्या हो जाएगा? 6। काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई अभी? 6। 6 इक्वल टू 0, यस। 6 लेस और 5, फॉल्स। तो कंडीशन से वो क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। क्लियर? एंड देन प्रोग्राम में से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे जो भी स्टेटमेंट होता है, राइट, ऐसे जो भी कंडीशन होती है उसको मल्टीपल टाइम हमें यूज करना होता है प्रोग्राम में, राइट। देन यू वांट टू यूज अ फॉर लूप। क्लियर? तो फॉर लूप का यूज क्या है वो पता चल गया। यहाँ पे उन लोगों ने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि नॉर्मली यूज व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम। तो हमें पता है कितनी बार उसको
वो लूप को हमें यूज़ करना है प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल मुझे 5 बार स्टार प्रिंट करना है, 5 टाइम्स मुझे स्टार प्रिंट करना है, तो मुझे पता है कि लूप कितने टाइम लूप का यूज़ होगा प्रोग्राम के अंदर, 5 टाइम्स। क्लियर? तो 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करना है, दैट मीन्स वो 5 टाइम कंपल्सरी लूप घूमेगी प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? जैसे ही लूप 6 हो जाएगी तो वो प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम में से बाहर आ जाएगी। क्लियर? तो फॉर लूप पता चल गया, सिंपल लूप है। क्लियर? नेक्स्ट इज नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप मीन्स यूजिंग लूप विद इन अनदर फॉर लूप, दैट मीन्स लूप के अंदर लूप। अभी लूप के अंदर लूप है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। क्लियर? सी यहाँ पे उन लोगों ने सिंटेक्स रखा हुआ है, फॉर लूप एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। देन उसके अंदर सेकंड लूप है फॉर लूप एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, एंड उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक। क्लियर? यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम देखना है, मुझे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो सेम स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम मुझे लिखना है, राइट? तो अभी मैं ये प्रोग्राम ऐसे कोई पैटर्न होती है, ऐसे पैटर्न को यूज़ करने के लिए हमें नेस्टेड लूप का यूज़ करना पड़ता है, लूप के अंदर लूप। ये प्रोग्राम कैसे रन होता है वो देखते हैं। सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। फर्स्ट इज हमारा हेडर फाइल, देन मेन फंक्शन, राइट? अभी मुझे स्ट्रक्चर प्रिंट करना है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट इज हमारे पास रो है, क्लियर, एंड देन रो है, राइट, मल्टीपल्स रो है, एंड देन मल्टीपल कॉलम्स है। क्लियर? सी फर्स्ट इज कॉलम, सेकेंड इज कॉलम, थर्ड इज कॉलम एंड फोर्थ इज कॉलम। क्लियर? सेम इट इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। क्लियर? तो अभी हमें ये प्रोग्राम को कैसे लिखना है वो हमें यहाँ पे देखना है। सी, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट इज इंटीजर आई, सेकेंड इज जे एंड थर्ड इज लाइन। क्लियर? तो 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। सेकेंड, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ लाइन्स। अब जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स लिखोगे उतने हिसाब से आपकी जो पैटर्न होगी वो पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3, राइट? तो जो भी लिखूंगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, लाइन्स नाम के वेरिएबल के अंदर, और जो स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया है वो जो भी आपने लिखा होगा वो स्कैन करेगा, वो स्टोर करेगा। क्लियर? देन फर्स्ट इज फॉर लूप, आई इक्वल टू 1 सेमीकॉलन आई लेजर इक्वल टू लाइन्स सेमीकॉलन आई प्लस प्लस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे लाइन के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 3, राइट? सो फर्स्ट आई इक्वल टू 1, आई लेजर इक्वल टू लाइन्स मीन्स 1 लेजर इक्वल टू 3 देन ट्रू। क्लियर? तो क्या होगा, फर्स्ट 1 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? देन 1 देन आई प्लस प्लस मीन्स 1 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अंदर आ जाएगा फॉर j इक्वल टू 1 सेमीकॉलन j लेजर इक्वल टू i मीन्स j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू भी 1 है। क्लियर? तो वो क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, j प्लस प्लस। अभी j की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी, 2, राइट? फिर से 2 इक्वल टू 1 ट्रू, 2 लेजर इक्वल टू 1, आई की वैल्यू अभी तक 1 ही है, राइट? तो वो क्या करेगा, 2 प्रिंट कर देगा। क्लियर? अभी j प्लस प्लस मीन्स 2 से अभी क्या हो जाएगा, j की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर? तो वो फॉल्स हो जाएगा, फिर से वो प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा, राइट? फॉर लूप में जाएगा, i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, अभी 2 हो जाएगी। क्लियर? इस हिसाब से आप जैसे लूप को यूज करोगे, राइट, उस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो आप कोई भी पैटर्न क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न आप इजीली क्रिएट कर पाओगे, बट ऐसी पैटर्न क्रिएट करने के लिए आपको नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा।
क्लियर। तो नेस्टेड फुल लूप का यूज़ करके आप ऐसे पैटर्न क्रिएट कर पाओगे, 1 2 3 वाले पैटर्न, स्टार पैटर्न, जो भी पैटर्न आप क्रिएट करना चाहते हो वो पैटर्न आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। क्लियर। सो ये सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे सिर्फ दो लूप का यूज़ किया है। आई लूप मीन्स वो कॉलम के लिए यूज़ की गई है, और जो जे मीन्स है वो लूप रो के लिए यूज़ की गई है, राइट। तो आप जैसे ही कंडीशन का यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको आपके जो भी पैटर्न्स होगी वो पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के अंदर। क्लियर। सी, यहाँ पे उन लोगों ने लिखा हुआ है एंटर नंबर ऑफ लाइन फोर्स, राइट। तो 4 वैल्यू स्टोर हो जाएगा लाइन के अंदर। देन फर्स्ट फॉर लूप यूज होगा, आई इक्वल टू 1, आई लेजर इक्वल टू लाइन्स, राइट। 4 1, 1 लेजर इक्वल टू 4, ट्रू, राइट। तो वो 1 प्रिंट कर देगा। क्लियर। अभी 1 प्लस प्लस, तो 1 प्लस प्लस की वैल्यू ये प्रिंट हो जाने के बाद वो क्या करेगा, 1 प्लस प्लस तो होगा ही नहीं, वो बाद में होगा, राइट। 1 प्लस प्लस मीन्स 2, अभी 1 में 2 आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। वो सेकंड फॉर लूप के अंदर जाएगा, जे इक्वल टू 1, राइट। जे की वैल्यू 1 है, जे लेजर इक्वल टू आई, 1 लेजर इक्वल टू आई की वैल्यू भी 1 है, तो ट्रू क्या करेगा वो 1 प्रिंट कर देगा। क्लियर। जे अभी जे की वैल्यू कितनी है 1, जे में इंक्रीमेंट होगा 1 प्लस प्लस 2 हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इक्वल टू 1, जे 2 इक्वल टू आई मीन्स 1, राइट। तो अभी 2 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अभी क्या होगा, वो फिर से 3 इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 2 हो गई है, 2 प्लस प्लस मीन्स 3, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर से क्या करेगा, फुल लूप के अंदर जाएगा, आई इक्वल टू 2, राइट। 1 थी, अभी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। 2 लेजर इक्वल टू लाइन्स, कितनी लाइन है 4, कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स वो सेकंड लाइन में आ जाएगा। क्लियर। ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। समझ में आएगा प्रोग्राम का फ्लो कैसे एग्जीक्यूट होता है। अंडरस्टूड। Okay, so hope you are understood all the topics, student. If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session, student. Have a nice day.